Hi, Assalamu alaikum. So in this video I'm gonna solve this project और ये जो डेटा है ये मैंने Kaggle से डाउनलोड किया है restaurant sales data. So it's the sales of a restaurant. Using this data set we answered multiple questions. So let's read out what is the data. It is a sales data of a restaurant company operating in multiple cities in the world. It contains information about individual sales transactions, customer demographics and product details. The data is structured in a tabular format like table, with each row representing a single record, which means a single record is single instance of the data, and each column representing a specific attribute. It means हर column में आपको different variable specific variable मिलेगा. This data set can be commonly used for business intelligence. It means आप अपने business को intelligently run कर सकते हैं using data driven decisions. Then we have sales forecasting and obviously to see in the future, basically sales forecasting. Like आप predict कर रहे होते हैं on the basis of model predictions के फ्यूचर में सेल कितनी होगी. एंड कस्टमर बिहेवियर एनालिसिस. व्हाट इज़ कस्टमर बिहेवियर एनालिसिस? कि कस्टमर की रूटीन्स क्या हैं, कस्टमर के पैटर्न्स क्या हैं, कस्टमर किन प्रोडक्ट से ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, एट विच कन्फिग्रेशंस बेसिकली. सो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन उन्होंने सैम्पल में एज अ टेम्पलेट दे दिए हैं. मोस्ट प्रिफर्ड पेमेंट मेथड एंड मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट एंड एट्सेट्रा. सो द मेन फीचर्स आर बेसिकली जब डेटा के वेरिएबल एक्सप्लेन करने की बात आएगी. सो दीज आर द मेन फीचर्स. कॉलम्स अवेलेबल इन द डेटा सेट. ऑर्डर आईडी, अ यूनिक आइडेंटिफायर फॉर ईच सेल्स ऑर्डर. सो दिस कॉलम इज़ यूनिक. तो अगर ये कॉलम में वैल्यूज़ रिपीट हो रही हैं तो मुझे वो डेटा सेट में जाके रिमूव करनी पड़ेंगी, जो कि बाद में हम देखेंगे. देन वी हैव द ऑर्डर डेट, the date when the order was placed. This column is essential for the time series analysis as identifying sales trends over time or seasonality. Then what is product? The name or type of the product sold. जो product क्या नाम है, बेची जा रही है, जो sold out की जा रही है, वो sales performance को जज करने के लिए ज़रूरी है. Then we have the price, the unit price of the product, like the price for one piece of the product basically. This along with the quantity ordered. कि एक तो यूनिट प्राइस आपको डेटा में गिवन है, फिर वो प्रोडक्ट के कितने यूनिट्स क्या नाम है ऑर्डर किए गए हैं, ठीक है. देन वी हैव द परचेज टाइप, और इन स्टोर और ड्राइव थ्रू. मे बी ऑनलाइन ऐप या वेबसाइट के थ्रू किया गया है, और मे बी स्टोर में जाके फिजिकली किसी पर्सन ने ऑर्डर किया है, या ड्राइव थ्रू पे जाके कर दिया है. देन वी हैव द पेमेंट मेथड, मे बी गिफ्ट, मे बी कैश, मे बी क्रेडिट कार्ड, और मे बी एनी ऑनलाइन मेथड. देन कम्स द मैनेजर ऑफ द स्टोर. And then we have the city, the location of the store in which the store is located. So this city variable is very useful when you need to, diagnose and see the performance of the store in different areas, right? So this is my data. Here it is. So I'm gonna select this data with Control A and I'm gonna press Alt H O I. So you're gonna press this, simultaneously. So it will auto adjust. Alt H O I. So here it has adjusted. No. Shit. Alt H O I. It's not working. I don't know why. Alt H O I. Control A, Alt H O I. So it finally worked. Then I'm gonna centralize this, and this is my data. So that is the order ID column, that is the date, and you can clearly see there are some entries in which the date is not in the correct format. So it means आप इससे पहले के पिवट टेबल और इन सारी चीज़ों की तरफ चले जाएं. आपने डेटा को अंडरस्टैंड करना है, और डेटा में फॉर्मेटिंग इश्यूज़ होंगे, क्लीनिंग करनी पड़ेगी, प्री प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी आपको थोड़ी बहुत, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द डेटा. सो ये जो क्या नाम है, जो सिलेक्टेड एरिया है, इसमें जो फॉर्मेट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है. सो वी नीड टू डू दैट, राइट. सो इट वाज माय टाइप और माय मिस्टेक कि वो डेट गलत फॉर्मेट हो गई थी. सो मैंने फिर इसे रीएडजस्ट कर दिया है. देन उसके बाद ये लें जी, और अब मैं पूरे इस डेटा को सिलेक्ट करूँगा. कोशिश करें कीबोर्ड के इस तरह के ड्रैग वाले ऑप्शंस ना ही यूज़ करें, बेटर है ये. इससे अच्छा कंट्रोल ए यूज़ करें. देन कंट्रोल टी फॉर इंसर्टिंग द टेबल. सो हियर आई हैव माई टेबल. मैं थोड़ा सा लाइट थीम चूज़ कर लेता हूँ जी, ये वाला. सो आई हैव द डेट. प्रोडक्ट में क्या क्या है, फ्राइज़ हैं, बेवरेजेस हैं, साइड्स एंड अदर्स, बर्गर्स, चिकन सैंडविचेस, फ्राइड, साइड्स एंड अदर्स. सो दीज आर द प्रोडक्ट्स. देन वी हैव द प्राइसेस, and the prices are 3.49, 2.95, 12.99. so I'm gonna assume ये जो प्राइस की करेंसी है, यानी यूनिट होगा कोई ना कोई प्राइस का, वो डॉलर है. और जो क्वांटिटी है, these are basically the number of pieces, or if it is the mass it should be in grams or maybe pounds depending on the product. so ये दोनों चीज़ें मेंशन नहीं है, ना क्वांटिटी के यूनिट मेंशन है, ना प्राइस के यूनिट मेंशन है. so no worries in that. then we have the purchase type, whether it's online or in store or drive through. Then we have the payment method, which is gift card, credit card,
gift card, cash, credit card, etc. Then we have the manager of the store, which is Tom Jackson, Pablo Perez. So there are different managers you can clearly see, right? Like Walter Mueller. Then we have the city, London, Madrid, Lisbon, Berlin, etc. So this is my data and these are my variables. So what is the objective of this analysis? So let's come here. So dashboard outline, revenue and orders summary. So that is the KPI section, which means key performance indicators. So to display in the cards or boxes on the top. So the first KPI is total revenue, which is price multiplied by quantity. Price mean unit price, right? Then we have the total order. Then we have the average revenue. Then we have the standard deviation of the revenue and variance of the revenue. So these are the, very fundamental and very easy to know KPIs that I'm going to calculate. So I'm gonna make the first sheet of KPIs, insert new sheet, name it KPIs. So in the first sheet, what I'm gonna do, I'm gonna insert a pivot chart. Yeah, that's the most easy way. Pivot chart के बगैर भी कर सकते हैं, लेकिन pivot chart के साथ कर लेते हैं. So insert pivot table. So table 1 already understood है. आप इस table का नाम चाहें तो change भी कर सकते हैं. New working sheet. I'm gonna delete this sheet. And that is the KPI sheet. Sorry. So that's it. So first of all, मुझे क्या चाहिए जी? टोटल रेवेन्यू चाहिए मुझे, which is price multiplied by quantity. So that's the problem. मेरे पास quantity है और प्राइस है, राइट? रेवेन्यू तो है ही नहीं मेरे पास. अगर मैं अपने डेटा के वेरिएबल्स, डेटा के जो फीचर्स हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, प्राइस है, क्वांटिटी है, एंड देयर इज़ नथिंग लाइक रेवेन्यू. कोई वेरिएबल ऐसा नज़र ही नहीं आ रहा जो कि रेवेन्यू को रिप्रेजेंट करेगा. सो इस किया जाए अब. ओके, हम देखते हैं इसका किया जा सकता है. नेक्स्ट वी हैव द टोटल ऑर्डर्स, विच मीन्स काउंट order ID. So the very simple thing I'm gonna do is in the pivot table sheet, I'm gonna insert order ID and sum of the order ID, and I'm gonna change in summarize value as count. So 254 orders, the total number of orders in the data. So that is the count of order ID. And next we have here average revenue. Again मुझे रेवेन्यू कॉलम कैलकुलेट करना पड़ेगा. देन वी हैव स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रेवेन्यू, देन वी हैव वेरिएंस ऑफ रेवेन्यू. सो फर्स्ट वी नीड टू फाइंड द रेवेन्यू. एंड हाउ डू वी डू दैट? अब डेटा में तो हमारे पास रेवेन्यू है नहीं, एज आई टोल्ड यू अर्लियर. सो व्हाट आई एम गोना डू, आई एम गोना क्लिक द पिवट टेबल एनालाइज. देन वी हैव द फील्ड लिस्ट एंड फील्ड आइटम्स एंड सेट्स कैलकुलेटेड फील्ड. आई एम गोना क्लिक दिस ऑप्शन. और यहाँ पे क्या करूँगा जी मैं? रेवेन्यू, लेट मी चेक द स्पेलिंग. आई एम बैड एट स्पेलिंग. रेवेन्यू, ओके. So that is the revenue, right? And what is the definition of the revenue? The price multiplied by the quantity. So here is the price, insert field. I'm gonna use static. Static इसलिए यूज़ करेंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए, राइट? तो इसका मतलब प्राइस जो कॉलम होगा उसकी हर वैल्यू कोरेस्पॉन्डिंगली क्वांटिटी की हर वैल्यू से क्या हो जाएगी जी? मल्टीप्लाई कर दी जाएगी, राइट? सो आई एम गोना क्लिक ओ. दैट्स इट. सो इसका मतलब ये है, अगर आपने पिवट टेबल में इन फील्ड्स को अगर आप देखें, डेट है, प्रोडक्ट है, प्राइस है, क्वांटिटी है, अगर आपने नई फील्ड ऐड करनी है यहाँ पे, ठीक है, तो आप उस नई फील्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं. यहाँ पे उस फील्ड का नाम आएगा और यहाँ पे उस फील्ड का जिस तरह कैलकुलेट की जा रही है उसका फार्मूला आ जाएगा. ओके, सो ऐड एंड ओके. सो वी हैव रेवेन्यू नाउ. सो दिस इज़ द सम ऑफ द रेवेन्यू. दैट्स इट. उसने खुद ही शो करवा दी है. सो जो न्यू फील्ड कैलकुलेटेड होगी वो यहाँ पे आ जाएगी. आप इसे ड्रैग डाउन करें and you can easily have it sum of revenue. And then the next thing, average revenue. And again for that क्या करेंगे जी? हम revenue को दोबारा drag down कर लेंगे. तो यहाँ पे आके summarize value as, अब ये summary आ ही नहीं रही. Now that's the problem. That's the first problem in Excel using pivot chart, कि जो आपकी calculated field हैं उनमें summary नहीं आती. क्या नहीं आती जी? summary नहीं आती. So I'm gonna skip this option. और मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा? कुछ न्यू टूल्स यूज़ करने पड़ेंगे, एडिंग्स वाले. ठीक हो गया. एंड इसका मतलब आप इसको इस तरह नहीं लेके चल सकते पिवट टेबल के थ्रू. सो दैट्स द फर्स्ट थिंग वी नीड टू रिमेंबर कि जो कैलकुलेटेड फील्ड्स होती हैं उनका ये जो समराइज वैल्यूज़ बाय का ऑप्शन होता है ये एक्टिवेट ही नहीं होता. ओके, वैल्यू फील्ड सेटिंग्स में भी जाके दे सकते हैं. ठीक है, सम ऑफ रेवेन्यू है. अगर यहाँ पे एवरेज करते हैं, आई एम गोना डू इट अगेन, शो वैल्यूज़, summarize value field settings tool, and I'm gonna go to average. The value is not getting changed, and again if I click the sum it is not getting changed again. It's not happening. So फिर हम क्या करेंगे जी? हम वापस यहाँ पर आ जाएंगे. That's it. यहाँ पर आके क्या करेंगे जी? न्यू कॉलम इंसर्ट कर देंगे हम रेवेन्यू के नाम से, REV
ENUE, दैट इज़ माई रेवेन्यू। सो हम रेवेन्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे जी? प्राइस। अच्छा हाँ, इस चीज़ को एक दफ़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। आपने जस्ट इक्वल का साइन लगाना है और अपना फार्मूला यूज़ करना है। सो मुझे प्राइस मल्टीप्लाइड बाय चाहिए क्या जी? क्वांटिटी, दैट्स इट। सो ये है जी टेबल की प्रॉपर्टी। जस्ट आपको सिंगल सेल में फार्मूला यूज़ करना पड़ता है और वो पूरे टेबल में यूज़ हो जाता है। नाउ यू कैन क्लियरली सी द सेल रेफरेंसेज, राइट। और ये जो मैं किसी भी सेल को एक्टिव कर रहा हूँ, ये मैं F2 प्रेस करके कर रहा हूँ। रिमेंबर दैट शॉर्टकट, इट विल कम इन वेरी हैंडी। सो दैट्स इट, ओके। सो मैंने रेवेन्यू कैलकुलेट कर लिया है। सो व्हाट आई एम गोना डू हियर, आई एम गोइंग टू डिलीट दिस ऑप्शन। या सबसे बेहतर मैं आपको बोलूँ, अब रेवेन्यू की मुझे ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ पे रेवेन्यू खुद ही कैलकुलेट कर लिया है, रेवेन्यू वाला कॉलम। सो ये जो KPIs में पिवट टेबल एनालाइज में जाऊँगा मैं, यहाँ पे फील्ड सेट्स और आइटम्स पे आ जाऊँगा। कैलकुलेटेड फील्ड है, यहाँ पे एक फील्ड मेरे पास रेवेन्यू आ रही है ऑलरेडी, इसे मैं अब कर दूंगा डिलीट, क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत ही नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है मुझे इसकी? क्योंकि ये मुझे वो प्रॉपर्टीज़ ही नहीं मिल रही। मैं रेवेन्यू फाइंड तो कर लेता हूँ, लेकिन मुझे अक्सर प्रॉपर्टीज़ नहीं मिल रही जिनमें एवरेज की प्रॉपर्टी आ रही है। हो सकता है मैंने स्टैंडर्ड एविएशन फाइंड करनी हो रेवेन्यू की, हो सकता है मैंने मिनिमम फाइंड करना हो रेवेन्यू का। सो समराइज वैल्यू एज, वो फील्ड एक्टिव ही नहीं हो रही इसकी वजह से। सो आई एम गोना डिलीट दिस, ओके। सो नेक्स्ट, अगर आप गौर करें यहाँ पे अभी भी ये जो मैंने डेटा में न्यू कॉलम ऐड किया है रेवेन्यू का, ये शो ही नहीं हो रहा पिवट टेबल में, राइट। हालांकि ये जो पिवट टेबल है ये इस डेटा पे ऊपर है, लेकिन ये कॉलम न्यू है। तो अब इस चीज़ को कैसे ऐड किया जाएगा? न्यू पिवट टेबल ऐड किया जाए? नहीं, ज़रूरत नहीं है। आप पिवट टेबल एनालाइज में जाएँ, रिफ्रेश में जाएँ, रिफ्रेश कर दें या रिफ्रेश ऑल कर दें, दैट्स इट। सो यू हैव रेवेन्यू, हेयर वी आर, सम ऑफ द रेवेन्यू, ठीक है जी। सो वी हैव हेयर टोटल रेवेन्यू, राइट। ये ले जी, टोटल रेवेन्यू तो हमारे पास आ गया है। आप चाहें तो इस चीज़ को इस तरह भी एडिट करके लिख सकते हैं, F2 Ctrl V एंड देन आई एम गोना एडिट दिस। ये लें जी, ये मेरा टोटल रेवेन्यू है। मैं रेवेन्यू को दोबारा ऐड कर देता हूँ। मुझे नेक्स्ट कॉलम क्या चाहिए जी? टोटल ऑर्डर्स। मैं टोटल ऑर्डर्स को भी ऐड कर देता हूँ, लेकिन ये सम दे रहा है मुझे। ये सम किस चीज़ का दे रहा है मैं भी बता देता हूँ। ये जो ऑर्डर आईडीज़ है ना, ये इन सब का सम दे रहा है। कितना आ रहा है इन सब का सम? आई एम गोना ज़ूम इन। सम आ रहा है 2688 समथिंग। और अगर आप पिवट टेबल में जाएँ, ये लें जी 268। तो मुझे आईडीज़ को सम करना ही नहीं है। इन आईडीज़ को मैं सम करूँ, मुझे कोई मीनिंग ही नहीं मिलना। ये तो सिंपल एक सीरियल नंबर है। सो मुझे इनका काउंट चाहिए। सो समराइज़, मैं राइट क्लिक करूँगा। सो समराइज़ वैल्यूज़ बाय काउंट। सो देयर आर 250 टोटल ऑर्डर्स बेसिकली, एंड देन वी हैव द सम ऑफ रेवेन्यू। इसका क्या करना है? ये मैंने क्यों ऐड किया था? ये मैंने ऐड किया था इसकी वजह से, एवरेज रेवेन्यू। तो मैंने एवरेज फाइंड करनी है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा? मैं यहाँ पर जाऊँगा, राइट क्लिक करूँगा, समराइज वैल्यू बाय एवरेज। सो दैट इज़ द एवरेज ऑफ रेवेन्यू। और 2 डेसिमल प्लेसेस पर राउंड ऑफ कर लेते हैं हम इन्हें। ये लें जी, ठीक हो गया। सो व्हाट इज़ द नेक्स्ट थिंग वी हैव? स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ रेवेन्यूज़, राइट। सो अब स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ रेवेन्यूज़ फाइंड करनी है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा जी? अगेन मुझे रेवेन्यू के कॉलम को इंसर्ट करना पड़ेगा। ये लें जी, मैंने इंसर्ट कर दिया है, ठीक हो गया। और इसको मैं समराइज वैल्यू बाय प्रोडक्ट एवरेज काउंट, स्टैंडर्ड एविएशन यहाँ पे है ही नहीं, उसका क्या करेंगे जी? मोर ऑप्शंस में जाएंगे और इस को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हमें नज़र आ जाएगा स्टैंडर्ड एविएशन। 2 नज़र आ रहे हैं, एक सिंपल स्टैंडर्ड एविएशन है और एक स्टैंडर्ड एविएशन के साथ P भी आ रहा है। सो ये P किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? पॉपुलेशन को। और ये सैम्पल को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो स्टैंडर्ड एविएशन या तो सैम्पल से ली जाती है या पॉपुलेशन से। सो आई एम गोना यूज़ द सैम्पल ऑप्शन, यानी सिंपल वन, स्टैंडर्ड। ये लें जी, ये है जी मेरी स्टैंडर्ड एविएशन। नेक्स्ट वी हैव इन द वर्ड फाइल वेरिएंस ऑफ द रेवेन्यू। सो उसके लिए रेवेन्यू कॉलम को दोबारा इंसर्ट करेंगे हम, एंड अगेन समराइज वैल्यू बाय मोर ऑप्शंस में जाएंगे। यहाँ पे वेरिएंस को सर्च किया जाएगा, एंड अगेन वेरिएंस के लिए भी 2 आपके पास चॉइसेस अवेलेबल हैं। वेरिएंस सैम्पल की, यानी फॉर द सैम्पल, एंड आल्सो फॉर द पॉपुलेशन। सो हम सैम्पल के लिए करेंगे जी, ये लें जी। और ये तो आपको पता ही होगा कि जो वेरिएंस होती है वो स्टैंडर्ड एविएशन का स्क्वायर रूट होती है, राइट। तो इनको भी 2 डेसिमल प्लेसेस तक कर दिया जाएगा। ये लें जी, KPIs की शीट हो चुकी है कंप्लीट। अब एक बात रह गई है कि इनको हमने प्रेजेंट करना है फॉर्मेट करके। वो काम लास्ट में होगा। पहले हम सिर्फ अपने इनसाइट्स सारे के सारे निकाल लेंगे, बाद में उन इनसाइट्स को इस तरह एडिट किया जाएगा, फॉर्मेट किया जाएगा कि वो प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेबल हों और प्रेजेंटेशन की जाए उनकी, ठीक हो गया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल KPIs की शीट तो डन हो चुकी है। नेक्स्ट वी हैव द पेमेंट एनालिसिस। सो व्हाट इज़ दैट? आई एम गोना नेम दिस शीट पेमेंट एनालिसिस। और हम इसमें क्या क्या करेंगे? मोस्ट प्रिफर्ड पेमेंट मेथड,
तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये पिवट टेबल को यूज़ करते हुए हमने ये करना है कि कौन सा पेमेंट मेथड सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है, एंड फॉर दैट आई एम गोना गो टू द डेटा अगेन एंड लुक एट द डेटा. सो दैट इज़ द पेमेंट मेथड, क्रेडिट कार्ड एट्सेट्रा. व्हाट इफ़ अगर ये वाला क्वेश्चन आपसे किया जाए कि कौन सा पेमेंट मेथड कितने % है इस डेटा में, यानी कस्टमर 70% कस्टमर ऐसे हैं जो क्रेडिट कार्ड से पे करते हैं, 20% ऐसे हैं जो गिफ्ट कार्ड से पे करते हैं, और 10% ऐसे हैं जो कैश से पे करते हैं. सो इस तरह हमारे पास डिफरेंट सेगमेंट्स आ जाएंगे. सो हमने पेमेंट मेथड फाइंड करने हैं एंड मोस्ट प्रिसाइजली मोस्ट प्रिफर्ड पेमेंट मेथड, यानी कस्टमर सबसे ज़्यादा कौन सा पेमेंट मेथड यूज़ कर रहे हैं. एंड फॉर दैट हमें क्या नाम है, परसेंटेज बार चार्ट बनाने की ज़रूरत है, या पाई चार्ट बनाने की ज़रूरत है, या डोनट चार्ट, जिसमें हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेमेंट मेथड्स पता चल जाएगी. सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेमेंट मेथड्स का मतलब क्या है कि कितने % कस्टमर कौन सा पेमेंट मेथड फॉलो कर रहे हैं, दैट इज़ अ डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली, राइट. एंड फॉर दैट हम उसके लिए क्या करेंगे, सो दैट इज़ अ रिसर्च क्वेश्चन, राइट ना, दैट इज़ द प्रॉब्लम कि व्हाट इज़ द मोस्ट प्रिफर्ड पेमेंट मेथड. एंड टू आंसर हम यहाँ पे पेमेंट एनालिसिस वाली शीट में जाएंगे, लेकिन उससे पहले डेटा में जाएँ, इंसर्ट करें जी, पिवट टेबल इंसर्ट कर देते हैं हम, एंड अगेन द नेम टेबल नेम इज़ टेबल 1, और एग्जिस्टिंग शीट में जाता हूँ और पेमेंट एनालिसिस में यहाँ पे मैं इंसर्ट कर देता हूँ जी, ये लें जी. एंड फॉर दैट अब इसके लिए कैसे ड्रॉ करेंगे जी, मतलब हमने पाई चार्ट ड्रॉ करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास पिवट टेबल होना चाहिए, राइट. सो पिवट टेबल तो मैंने बना लिया. अब मैं कैसे क्या नाम है पेमेंट मेथड करूँगा, आई एम गोना फर्स्ट डू परचेज टाइप, दैट्स इट. So I can have 3 distinct categories: drive through, in store and online. So basically purchase type is a categorical variable, and I'm going to edit this label. I'm going to rename this as payment method. Okay, so यहाँ पर कौन सा कॉलम आएगा, that's the problem. ये तो कैटेगोरिकल वेरिएबल है, और अगर इसे मैं यहाँ पे ऐसे शिफ्ट कर देता हूँ तो मुझे वो काउंट दे देता है, बिकॉज कैटेगोरिकल वेरिएबल है, उसने तमाम कैटेगरीज काउंट कर दी हैं. और अगर मैं वापस यहाँ पे ले आता हूँ तो ये मुझे पेमेंट मेथड कैटेगरीज दे देता है उसकी, और अगर इसे मैं कॉलम्स में ले आता हूँ तो फिर भी मुझे कैटेगरीज दे देता है, बट इन टर्म्स ऑफ कॉलम्स दे देता है, राइट. और अगर मैं फ़िल्टर में ले आता हूँ तो फिर ये फ़िल्टर बन जाता है उस पिवट टेबल का. सो मुझे इसे रोज़ में ही रखना चाहिए. बट यहाँ पे कौन सा कॉलम आएगा, ऑब्वियसली कोई भी कॉलम आएगा उसकी वैल्यूज़ को बाय डिफ़ॉल्ट सम किया जाएगा. चले मैं ऑर्डर आईडी यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है, कि कितनी ऑर्डर आईडीज़ ऐसी हैं जो ड्राइव थ्रू वाले क्या नाम है सेक्शन में फॉल कर रही हैं, कितनी ऑर्डर आईडीज़ ऐसी हैं जो इन स्टोर में, और कितनी ऑनलाइन में. लेकिन ये उसने क्या दे दिया है, सम दे दिया है. मुझे चाहिए काउंट, हाउ मच, एंड फॉर दैट समराइज वैल्यू एज काउंट. सो हेयर वी कैन सी 61, 86 एंड 107. सो 65 नंबर ऑफ़ कस्टमर्स ऐसे हैं जो ड्राइव थ्रू पेमेंट मेथड से कर रहे हैं, 86 ऐसे हैं जो इन स्टोर से कर रहे हैं, और जो ऑनलाइन पेमेंट मेथड यूज़ कर रहे हैं वो 107 है. एंड क्लियरली ऑनलाइन वाले ज़्यादा हैं. सो इसको आप क्या कर सकते हैं जी, सॉर्ट कर सकते हैं. सो शो डिटेल्स, एंड हेयर इज़ द सॉर्ट ऑप्शन, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट. इट मीन्स इन द डिसेंडिंग ऑर्डर, राइट. और इन द क्लासिकल उर्दू तरतीब नज़ूली, या व्हाट अ मेमोरी. सो एक तो ये चार्ट बन सकता है, ठीक है. और अगर आप इसे चेंज करना चाहते हैं काउंट से, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी है, ऑनलाइन की फ्रीक्वेंसी 107 है, फ्रीक्वेंसी मीन द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन दैट पर्टिकुलर ग्रुप और क्लास, और इन स्टोर में 86 है और ड्राइव थ्रू में 61 है. आप इसे परसेंटेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, शो वैल्यू एज परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल. सो दिस इज़ द कॉलम टोटल. ओके, सो ये लें जी, 42% ऑनलाइन पेमेंट मेथड को फॉलो करते हैं, 33 इन स्टोर को, एंड 24 ड्राइव थ्रू को फॉलो करते हैं. सो अब मैंने चार्ट इंसर्ट करना है. सो आपकी मर्ज़ी है, आप कैटेगोरिकल बार चार्ट भी यूज़ कर सकते हैं जो कि 2 टाइप्स में होता है. आई एम गोना इंसर्ट द चार्ट एंड देन शो यू. सो पिवट चार्ट, देन वी हैव दिस, दैट इज़ द वर्टिकल बार चार्ट. क्यों, क्योंकि इसमें ये जो बार्स हैं ये वर्टिकल हैं, और ये जो स्केल है ये कैटेगोरिकल स्केल है, ये ऐसा नहीं कोई न्यूमेरिकल स्केल है, ये आपका परसेंटेज का स्केल है बेसिकली. सो मैं क्या करता हूँ जी, हाइड ऑल फील्ड बटन्स ऑन द चार्ट, एंड देन आई एम गोना हाइड द लेजेंड एंड द ग्रिड लाइन्स टू. और अगर आपको आसानी है तो आप लगाए रखें, और फिलहाल मैं चार्ट टाइटल भी रिमूव कर देता हूँ, दैट्स इट. डेटा लेबल ऐड किए जा सकते हैं, डेटा लेबल्स, ये लें जी, आ गए डेटा लेबल्स. इसी चार्ट को मैं कॉपी करके पेस्ट करता हूँ, और अब मैं इस चार्ट के डिज़ाइन में जाता हूँ. यहाँ पे मुझे चेंज चार्ट टाइप का ऑप्शन मिलेगा. ये कॉलम चार्ट है, ये लें जी, इस तरह भी कर सकते हैं आप. सो दैट इज़ द वर्टिकल बार चार्ट एंड दैट इज़ द हॉरिजॉन्टल बार चार्ट, राइट. ये कैटेगोरिकल वेरिएबल्स को जब आपने उनकी फ्रीक्वेंसी को, या उनकी परसेंटेज को, या उनकी डिस्ट्रीब्यूशन को जब आपने प्रेजेंट करना हो इन द टर्म्स ऑफ पिक्चर,
पिक्चर तो आप इस तरह यूज़ कर सकते हैं। अब इसे मैं दोबारा कॉपी पेस्ट करता हूँ, मैं एक और ऑप्शन आपको दिखा देता हूँ। Here we are, इसकी भी मैं चार्ट टाइप चेंज करने लगा हूँ। इन द डिज़ाइन ऑप्शन वी हैव द चेंज चार्ट टाइप एंड आई हैव द, सो यू हैव द पाई चार्ट इजीली। और इसको भी आप एडिट कर सकते हैं, कैसे जी? डाटा लेबल्स इंसर्ट करके चार्ट टाइटल करना है कर दें, लेजेंड भी कर दें। हाँ, लेजेंड ज़रूरी है ताकि हमें पता चल सके कि कौन सा कलर किस सेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं अगेन कॉपी करता हूँ और फिर पेस्ट कर देता हूँ। इसको थोड़ा सा ऊपर मूव कर लेते हैं और मैं इसकी भी चार्ट टाइप चेंज करने लगा हूँ एंड आई एम गोना गो फॉर द, सो दैट इज़ द डोनट, राइट। सो अब ये आपकी चॉइस है कि आपने ये वाला चार्ट यूज़ करना है, ये वाला या ये वाला, इट्स अप टू यू। बट इन द मोस्ट प्रिफर्ड पेमेंट मेथड मैंने बता दिया है कि कौन सा है, और वो कौन सा है जी? ऑनलाइन, राइट। अब आपकी मर्ज़ी है, इनमें से कोई भी चार्ट आप यूज़ कर लें। जब भी आपके पास कैटेगोरिकल वेरिएबल होगा कि ऐसा वेरिएबल जिसकी वैल्यूज़ में आपको डिफरेंट क्लासेस मिले, ऑनलाइन, इन स्टोर, ड्राइव थ्रू, ठीक है, दैट इज़ एग्जाम्पल, तो आप इनमें से कोई भी चार्ट ड्रॉ कर सकते हैं। या दैट्स इट। नेक्स्ट, नाउ वी हैव द प्रोडक्ट एनालिसिस। सो आई एम गोना इंसर्ट अ न्यू शीट एंड रीनेम इट एज प्रोडक्ट एनालिसिस। सो प्रोडक्ट एनालिसिस में क्या करेंगे जी? हम मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट, दैट इज़ माई क्वेश्चन, लाइक विच इज़ द मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट। ओके, सो उसके लिए चार्ट कौन सा ड्रॉ करेंगे जी? हम क्वांटिटी सोल्ड पर प्रोडक्ट एंड रेवेन्यू पर प्रोडक्ट। नो, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। कि एक प्रोडक्ट ऐसी है जो इन टर्म्स ऑफ नंबर, इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स बहुत ज़्यादा सोल्ड आउट हो रही है, ठीक है। मे बी वो रेवेन्यू सबसे ज़्यादा ना दे रही हो, ठीक है। मे बी वो एक ऐसी चीप प्रोडक्ट हो जो कि यूज़ ज़्यादा होती है, इस वजह से सोल्ड आउट ज़्यादा हो रही है, बट वो रेवेन्यू को इतना कंट्रीब्यूट नहीं कर रही, ठीक है। लेकिन एक प्रोडक्ट ऐसी है जो कि ज़्यादा सोल्ड आउट नहीं हो रही, जिसके जो यूनिट्स हैं वो ज़्यादा सोल्ड आउट नहीं हो रहे, लेकिन अगर उसके 10 यूनिट्स भी सोल्ड आउट होते हैं तो वो आपको अच्छा खासा रेवेन्यू दे जाती है। तो आपने मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट फाइंड करनी है इन टर्म्स ऑफ द रेवेन्यू एंड ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ द क्वांटिटी। सो क्वांटिटी में कौन सी सबसे ज़्यादा सोल्ड आउट हो रही है और रेवेन्यू में कौन सी हो रही है। सो दीज आर द टू चार्ट्स। तो आप इनके लिए बार चार्ट ड्रॉ कर लें। द सूटेबल ऑप्शन इज़ बार चार्ट। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसके लिए भी पिवट टेबल ही इंसर्ट करना है एंड उसके लिए हमें डेटा पे जाना पड़ेगा एंड इंसर्ट पिवट टेबल एंड इन द एग्जिस्टिंग वर्किंग शीट आई एम गोना गो टू द प्रोडक्ट एनालिसिस एंड हेयर आई हैव दिस। सो अब मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सी प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा सोल्ड आउट हो रही है इन टर्म्स ऑफ नंबर, इन टर्म्स ऑफ द मोस्ट यूनिट्स सोल्ड आउट। सो इट मीन्स ये जो प्रोडक्ट है, अगर मैं इसे ऑब्जर्व करूँ अपने डेटा में, हेयर, so product is also a categorical variable, right? It has different values as categories: burgers, chicken sandwiches. So I'm gonna drag this option to here. So I have the unique categories of the variable, which is product. 1, 2, 3, 4, 5. So 5 unique categories, and I'm gonna rename this label as product type. We have these product types, and these are 5 distinct categories. So अब यहाँ पे कौन सा कॉलम आएगा? सिग्मा वैल्यूज़, ये जो सेक्शन बना हुआ है, राइट। इसके लिए आप क्वांटिटी को इंसर्ट कर लें। क्यों? क्योंकि मैंने फाइंड आउट करना है कि किसकी क्वांटिटी कितनी सोल्ड आउट हुई है। सो बेवरेजेस की क्वांटिटी ये सम दे रहा है जी, सम। अब मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दूं, इसका मतलब क्या है। लेट्स गो टू दिस डेटा। ये क्वांटिटी है जी 573, मतलब 573 जो क्वांटिटी है वो किसकी यूज़ हो रही है जी? फ्राइज़ की। 745 किसकी यूज़ हो रही है? बेवरेजेस की। 200.4 किसकी यूज़ हो रही है? साइड्स एंड अदर्स। एंड बर्गर्स की क्या यूज़ हो रही है जी? 569। सो जब मैं इस पिवट टेबल में आता हूँ तो बेवरेजेस का सम मेरे पास ये आ रहा है, ठीक है जी। आई नीड टू फिगर आउट दिस, दैट व्हाट डज दैट मीन, व्हाट इज़ दिस यूनिट मीन, बिकॉज if it's a quantity it could be an integer, right? Because it is the unit price, fries, or it doesn't make any sense कि जो fries में से एक पीस है उसकी प्राइस $3.49 है, ठीक है। It means it's either it should be the mass 573.07, 745.76, it should be the mass or mass measured in some other units. I can argue that. But the point is, if you want to sum these quantities by these product categories, so you would choose this option, the usual option of sum, definitely. तो हम इस ऑप्शन को ऐसे ही रहने देंगे, ठीक हो गया जी। So this is the sum of quantity. And next, I'm gonna go to the pivot chart, and here I have this bar chart. Okay,
hide all field buttons, and also I'm gonna remove the legend and chart title too. This is not necessary now for the moment. एंड अगेन अब मैंने एक और पिवट टेबल इंसर्ट करना है, मैं इसी शीट में कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं चाह रहा हूँ मैं रेवेन्यू पर प्रोडक्ट भी देख लूँ कितना है। सो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा जी, मैं पिवट टेबल मैंने कॉपी तो कर लिया ऑलरेडी, मैं उसी पिवट टेबल को पेस्ट कर देता हूँ। ये लें जी, अगर आप पिवट टेबल एनालाइज पे आएँ, ये पिवट टेबल 3 है और ये पिवट टेबल 4 है। सो इट मीन्स आप एक ही शीट में डिफरेंट पिवट टेबल इंसर्ट करके काम कर सकते हैं ईजिली, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन की बात नहीं है। अच्छा जी, ये तो बिल्कुल सेम हो गया। इसका मतलब इस पिवट टेबल को सिलेक्ट करके मुझे सम ऑफ क्वांटिटी को रिमूव करके मुझे रेवेन्यू रखना पड़ेगा। सो द सम ऑफ रेवेन्यूज़ फॉर ऑल दीज प्रोडक्ट टाइप्स एंड द सम ऑफ द क्वांटिटी फॉर ऑल दीज प्रोडक्ट टाइप्स। सो इसको भी मैं सॉर्ट ऑप्शन करके लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर दूंगा एंड द चार्ट विल ऑटोमेटिकली अपडेट एंड द सेम गोज़ फॉर दिस पिवट टेबल, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। सो सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू है वो बर्गर्स दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा क्वांटिटी किसकी सोल्ड आउट हो रही है? बेवरेजेस की। ठीक हो गया। नो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन कि मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ नंबर्स और द यूनिट्स सोल्ड, मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स इन टर्म्स ऑफ द गेटिंग बेटर और गुड सबसे ज़्यादा रेवेन्यू अगर आपने देखना हो कि कौन सी प्रोडक्ट दे रही है, दैट वुड बी द बर्गर्स। इसके लिए भी मुझे चार्ट इंसर्ट करना पड़ेगा जी, एंड अगेन आई एम गोना गो टू द इंसर्ट एंड here comes the pivot chart in the pivot table analyze। या ये लें जी, और ये pivot chart आ गया है जी रेवेन्यू को लेके, and I'm gonna remove all these field buttons, hide all field buttons, and then I'm gonna remove this grid line and legend too and chart title too। एडिटिंग बाद में कर लेंगे सर, हम टेंशन नहीं लेनी किसी ने, ठीक। ये जो मैग्नेटिक बिहेवियर है ये वाला, ये आल्ट के साथ, आल्ट प्रेस करके जब आप सिलेक्शन को मूव करते हैं तो तब होता है ये, रिमेंबर दैट। नॉट ओनली दैट, यू कैन आल्सो ऑब्जर्व दिस मैग्नेटिक बिहेवियर मूविंग द सिलेक्शन बाय प्रेसिंग आल्ट। सो ये लें जी, ये प्रोडक्ट एनालिसिस भी हो चुका है जो बड़ा सिंपल था। देन वी हैव द एवरेजेस बाय प्रोडक्ट, यस दैट्स अनदर थिंग, और ये भी मैं इसी शीट के अंदर करने वाला हूँ, एवरेजेस बाय प्रोडक्ट। एंड फॉर दैट थिंग आई थिंक मैं इसके चार्ट साइज़ को रिड्यूस करूँगा और मैं इधर कर दूँगा, एंड द सेम गोज़ फॉर दिस। इसकी भी ग्रिड लाइन्स रिमूव कर देते हैं, अच्छी नहीं लगती ग्रिड लाइन्स, ठीक है। Ctrl+C Ctrl+V। पिवट टेबल्स की एडिटिंग मुझे यहीं पे कर लेनी चाहिए, जैसे इसे मैं सिलेक्ट करके वैल्यू फील्ड पिवट टेबल ऑप्शंस में जाते हैं, टोटल एंड फिल्टर, मुझे नहीं चाहिए टोटल एंड फिल्टर्स, ठीक है जी। आई एम गोना क्लिक ओके, एंड द सेम गोज़ फॉर दिस पिवट टेबल ऑप्शंस, टोटल एंड फिल्टर। अगर चाहिए होंगे दोबारा ऑन कर लूँगा, फिलहाल तो नहीं चाहिए मुझे। एंड द सेम गोज़ फॉर दिस, मैं इसके भी पिवट टेबल ऑप्शंस में जाऊँगा और यहाँ पे टोटल्स एंड फिल्टर्स, शो ग्रैंड टोटल्स फॉर रोज, आई डोंट नीड दैम, एंड द सेम गोज़ फॉर दिस। ये लें जी, लेकिन ये पिवट टेबल नए वाला है, राइट ना? अगर आप गौर करें, दिस पिवट टेबल इज़ 3, दिस इज़ 4 एंड दिस इज़ 5। ये क्यों इंसर्ट किया है? टू आंसर दिस क्वेश्चन, एवरेजेस बाय प्रोडक्ट, एवरेजेस बाय प्रोडक्ट, पिवट टेबल विद द प्रोडक्ट एवरेज क्वांटिटी वर्सेस एवरेज रेवेन्यू। हाउ टू डू दैट? मतलब सेम काम करना है, पहले हमने सम फाइंड आउट किया है, अब हमने एवरेजेस फाइंड आउट करनी है। एंड फॉर दैट हम क्या करेंगे जी, दैट इज सम ऑफ द रेवेन्यू। आई एम गोना रिमूव दिस वन एंड देन आई एम गोना यूज क्वांटिटी एंड समराइज वैल्यूज बाय एवरेज। ये लें जी, एवरेज क्वांटिटी बेवरेजेस की इतनी है, इसे मैं क्या कर लेता हूँ जी, सॉर्ट कर लेता हूँ लार्जेस्ट टू द स्मॉलेस्ट। सो सबसे ज़्यादा बेवरेजेस की है, उससे कम फ्राइज़ की जो कि थोड़ी सी कम है, और बर्गर्स की तकरीबन 100 का डिफरेंस नज़र आ रहा है, लेस दैन 100। एंड चिकन एंड सैंडविचेज़ ये तो बहुत ही कम है। सो दीज 3 ऑप्शंस आर कंपेरेबल टू ईच अदर एंड द लास्ट 2 ऑप्शंस आर कंपेरेबल टू ईच अदर। ओके, सो इसका भी मैं चार्ट ड्रॉ कर सकता हूँ जी। सो इसका चार्ट मैं कैसे ड्रॉ करूँगा जी, पिवट टेबल एनालाइज एंड आई एम गोना इंसर्ट पिवट चार्ट। तो पिवट चार्ट तो लाइन चार्ट भी हो सकता है, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि होता है वो ट्रेंड को, टाइम सीरीज़ चार्ट को, जब अपनी सेल्स का ट्रेंड ओवर द टाइम देखना हो, और टाइम से मुराद ईयर भी हो सकते हैं, मंथ्स भी हो सकते हैं, क्वार्टर्स भी, वीक्स भी, डेज भी। ओके, तब हम इस चीज़ को यूज़ करते हैं। फनल नो, बॉक्स एंड विस्कर ये अवेलेबल ही नहीं है। एरिया चार्ट, दिस बार चार्ट इज़ ओके, एरिया चार्ट नॉट गोना ओके, कॉन्टीन्यूस बना देता है, हमें पता ही नहीं चलना कौन सी क्वांटिटी का थ्रेशोल्ड क्या है एग्जैक्टली, हमें आइडिया ही नहीं होना। देन वी हैव द बार चार्ट एंड द पाई चार्ट, नॉट गोना हैपन वो। एंड अगेन सब कुछ रिमूव करते जाएंगे इसका आप, ग्रिड लाइन्स, लेजेंड्स। एक चीज़ एक्स्ट्रा रिमूव हो चुकी है और वो क्या है जी, डाटा लेबल्स, एक्सिस टाइटल्स, और अभी एक्सिस टाइटल तो जाएगा हमें वो
खुद लिखने पड़ेंगे। सो आई एम गोना प्रेस कंट्रोल जी अनटिल मेरे ये जो टाइटल है ना कैटेगरीज ये वापस आ जाए। कंट्रोल जी कंट्रोल जी कंट्रोल जी कंट्रोल जी, हियर आई हैव। सो लेजेंड रिमूव कर देते हैं, ग्रिड लाइन रिमूव कर देते हैं, और ये जो फील्ड बटन है इन्हें हाइड कर देते हैं जी। ठीक हो गया जी। सो एक तो ये चार्ट बन चुका है हमारे पास। एवरेजेस को जो रिप्रेजेंट कर रहा है, किसे रिप्रेजेंट कर रहा है जी? एवरेजेस को। थोड़ा सा इसे इधर मूव कर देते हैं। इसी पिवट टेबल को मैं कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी, एंड बिल्कुल इसकी अलाइनमेंट में और इसके नीचे, हियर आई हैव। एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, एक इस शीट में 4 पिवट टेबल मैंने इंसर्ट किए हुए हैं, 3 4 5 6। ठीक है, इन दोनों में सम रिप्रेजेंट किया जा रहा है क्वांटिटी और रेवेन्यू का बाय दिस प्रोडक्ट कैटेगरीज, और इन दोनों में एवरेज बिहेवियर ऑफ द क्वांटिटी एंड ऑल्सो ऑफ द रेवेन्यू। अब इसकी तो फील्ड शो नहीं हो रही, तो इस ऑप्शन को क्लिक कर देंगे हम, फील्ड लिस्ट को। यहाँ से हम एवरेज ऑफ क्वांटिटी को रिमूव कर देंगे और रेवेन्यू ले आएंगे। एंड अगेन जो स्टैंडर्ड डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है वो सम की है, तो मुझे इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा जी, समराइज वैल्यूज़ बाय एवरेज। तो ये लें जी, और थोड़ा सा फॉर्मेटिंग मैं इस तरह करता हूँ जी कि कंट्रोल ए हो रहा है, गुड। चलें जी, 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ कर दिया मैंने, सेंट्रलाइज भी कर दिया है। ठीक है, दैट्स गुड। और ऑर्डर भी लगा देते हैं जी इसका, सॉर्ट लार्जेस्ट टू द स्मॉलेस्ट, ये भी ऑर्डर में है, ये भी और ये भी। इसका भी चार्ट इंसर्ट करना है जी, पिवट टेबल एनालाइज, पिवट चार्ट, एंड देन आई हैव द दिस चार्ट। मैं अपने ये वाले चार्ट हैं हॉरिजॉन्टल, इन्हें मैं एवरेज के लिए रख रहा हूँ, और ये जो वर्टिकल चार्ट हैं ये मैं सम के लिए यूज़ कर रहा हूँ। सो आई एम गोना रिमूव द ग्रिड लाइंस एंड लेजेंड। सो ये लें जी, ये एक और शीट बन चुकी है जी प्रोडक्ट एनालिसिस की, और ये चाहिए थी। आगे वो कह रहा है हीट मैप फॉर्मेटिंग टू शो टॉप बॉटम प्रोडक्ट्स। ये क्या है जी हीट मैप? ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, इट इज़ अ काइंड ऑफ कंडीशनल फॉर्मेटिंग। एंड हाउ डू वी डू दैट? सिंपली यू आर गोइंग टू सिलेक्ट दिस एंड होम में जाएं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कलर स्केल्स, ये लें जी। जो सबसे हाई वैल्यू है वो ग्रीन कलर में शो की जा रही है, जो उससे थोड़ी सी कम सेकंड पोजीशन पे है वो थोड़ा सा पैरेट कलर में है, देन वी हैव द येलो कलर, एंड देन एट द एक्सट्रीम्स एट द वेरी लोएस्ट वी हैव रेड, मे बी माल्टा और मे बी रेड, आई एम नॉट गुड विथ कलर्स। सो मैं क्या करूँगा, अब मैं सेम कंडीशनल फॉर्मेटिंग यहाँ पे यूज़ करता हूँ। मुझे इधर जाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ये लें जी। लेकिन इसका एक अल्टरनेट वे भी है। मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो सारी फॉर्मेटिंग है जिसमें ऑब्वियसली डेसिमल प्लेसेस भी आ रही हैं, 2 डेसिमल प्लेसेस, और ये कलर स्कीम भी आ रही है सारी, मैं इस सारी फॉर्मेटिंग को यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दूँ। तो मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा जी, इस सारे को सिलेक्ट किया, फॉर्मेट पेंटर, यहाँ पे जाके क्लिक कर दिया जी, हेयर वी हैव। अगेन इसे क्या नाम है, फॉर्मेट पेंटर करें, यहाँ पे जाके क्लिक कर दें, ये लें जी, ठीक हो गया जी। सो फॉर्मेट पेंटर की ऑप्शन भी आपको एक्सप्लोर करनी आ गई है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। सो ये हीट मैप वाला काम भी हो चुका है, ठीक है जी। वेल दैट इज़ बेसिकली काइंड ऑफ हीट मैप, ठीक है, जहाँ से आपको कंफर्टेबली देख के पता चल सकता है कि कहाँ पे हायर वैल्यूज़ हैं और कहाँ पे लोअर वैल्यूज़ हैं इन द कैटेगरीज, in the sum chart, in the revenue chart, in the quantity and also in the revenue. These two are for averages and these two are for sum. Next चलते हैं जी। Then we have the geographical and manager performance के एरिया वाइज किसका रेवेन्यू ज़्यादा है या किसकी सेल ज़्यादा है, ठीक है। और मैनेजर, एंड ऑब्वियसली हर होटल का कोई ना कोई मैनेजर होगा, और ठीक है, उसे चलाने के लिए, उसे मैनेज करने के लिए, तो ये उसकी ज़िम्मेदारी होती है रेवेन्यू वगैरह ये सारी चीज़ें देखना, ठीक है, कि रेवेन्यू इंक्रीज़ क्यों नहीं हो रहा। सो किस मैनेजर के अंडर कितना रेवेन्यू जनरेट किया जा रहा है ये भी हमने देख के बताना है। सो इसके लिए नई शीट बना लेते हैं हम, इसे ज़्यादा कीज़ आनी नहीं है, चलें जी यहीं पे इसे मुख्ततम करते हैं। एंड द सिटी वर्सेस मैनेजर रेवेन्यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू इंसर्ट द कॉलम चार्ट फॉर विच रेवेन्यू बाय सिटी। सो पहले डेटा पे जाकर ज़रा ऑब्जर्व करते हैं। सो दैट इज़ माई डेटा, सेल्स डेटा एनालिसिस, एंड दीज आर द सिटीज़, राइट। I don't know how many cities, but these values are repeating, right? And Berlin, then we have Madrid, and then we have, so we need to calculate, you know, sum of the revenue by each city, and for that मुझे the so called pivot table वो insert करना पड़ेगा in this, ये लें जी, यहाँ पे कर देता हूँ मैं। and obviously ये pivot table 7 है, आप चाहें तो रीनेम भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं अभी करें, बाद में भी कर सकते हैं ताकि याद रह सके। and obviously जितने भी नाम आप देंगे यूनिक होने चाहिए। So in this pivot table I'm gonna do this,
revenue by city. So I'm gonna drag the city variable to the rows, and here I have 5 unique cities. So this data is all about from the 5 unique cities, and then I need to calculate the sum revenue by city. So the total revenue by city, it means revenue कॉलम को ड्रैग करके सिग्मा में ले आऊँगा मैं, और इसे मैं क्या कर दूंगा जी, सॉर्ट कर दूंगा लार्जेस्ट टू द स्मॉलेस्ट। एंड चलें जी, इसके लिए भी चार्ट इंसर्ट कर देते हैं हम। सो पिवट एनालाइज, एंड देन वी हैव द पिवट चार्ट। So this is my pivot chart. That's it. Hide all field buttons on the chart, and then we have remove the grid lines and remove the legend. That's it. And again the next thing is bar chart, revenue by manager. Okay. Control V. सिटी को मैंने रिमूव कर दिया, वो सिर्फ सम ऑफ रेवेन्यू दे रहा है, तो यहाँ पे आप ड्रैग कर। सो ये मेरे मैनेजर हैं जी, ठीक हो गया जी। इसे भी ड्रैग सॉर्ट कर देता हूँ मैं, ड्रैग तो नहीं, सॉर्ट। ये सिल्वा नामी मैनेजर है, इनका रेवेन्यू सबसे ज़्यादा है। आई एम गोना सेलेक्ट कंट्रोल ए, और मैं डेसिमल प्लेसेस 2 पे कर दूंगा, राउंड ऑफ टू द 2 डेसिमल प्लेसेस। और इसके अलावा इनमें भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर देते हैं, ठीक है जी। और इस चीज़ को रिमूव कर देते हैं, जो टोटल्स हैं इनकी ज़रूरत नहीं है हमें। ऑप्शंस में जाते हैं, टूल्स एंड फिर टोटल एंड फिल्टर्स, एंड अनक्लिक दिस ऑप्शन, एंड द सेम गोज़ फॉर दिस पिवट टेबल ऑप्शंस, टोटल एंड फिल्टर्स, एंड दैट्स इट। हियर वी हैव नाउ। सो कंडीशनल फॉर्मेटिंग करते हैं जी इसकी भी। कंडीशनल फॉर्मेटिंग ये लें जी। अब अगर मैं इसी सारे को सिलेक्ट करूं फॉर्मेट पेंटर, तो वो सिर्फ इन्हें करेगा, तो कोई बात नहीं। अब सिलेक्ट करके अब कर देते हैं, ठीक है, फिर करते हैं, फिर कर देते हैं, लेकिन वो उसने इस सेल को भी इंक्लूड कर दिया है, राइट। तो फिर इसका आसान हल ये है जी, इस सारे को कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से सिलेक्ट कर लें और कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएं और चुप करके ये कर दें, ठीक है जी। सो ये लें जी, टॉप एक्सट्रीम में 2 वैल्यूज़ आ रही हैं, जैक्सन एंड सिल्वा, और नीचे तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा ही कुछ रेवेन्यू कम है कुछ मैनेजर्स का, मतलब हार्डली 2200। दैट्स इट। ये सारी कंपेरेबल वैल्यूज़ हैं, ये थोड़े से बेहतर हैं। एंड here I see some ambiguity in the data. That is the name, I don't know how to pronounce it, but let's call it Silva. And then I again have this name Silva, okay? And I again have this name Pablo and Pablo. So it means names are getting repeated. Why? We need to format or clean this data. ये चीज़ हमें अब क्यों पता चली ऐसे, क्योंकि हमने अब आगे इस चीज़ को मैनेजर को देखा है। We will definitely sort this out, yeah, maybe in this lecture or maybe in the next lecture. बट इसका प्रॉब्लम क्या है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे इस प्रॉब्लम को, कि ये नाम रिपीट हो रहे हैं। ये नाम रिपीट क्यों हो रहे हैं, दैट्स द प्रॉब्लम। उसकी वजह यह है कि इसकी फॉर्मेटिंग एक्सेल डिफरेंट ले रहा है और इसकी फॉर्मेटिंग डिफरेंट ले रहा है, और इसको डील करते हैं। ओके, इसी की तरफ चलते हैं। लेट्स चेक दिस आउट। सो दैट इज़ जैक्सन। आई एम गोना क्लिक दिस वन, अनसिलेक्ट ऑल, देन क्लिक दिस सिल्वा, बिकॉज ऑल सिल्वा आर सेम ना। So Silva, and is there any other Silva? No, there is not. So this is a Silva. So you can clearly see that is the regular pattern of writing this name, but there are some inconsistencies in the data like this. यहाँ पर Silva में आपको ज़्यादा स्पेस नज़र आ रही है, राइट। तो मैं फिर क्या करूँगा, ये जो हमारे रेगुलर Silva हैं यानी रेगुलर फॉर्मेट वाले, इनको कॉपी कर लूँगा, फिर उनके बाद इनको अनक्लिक कर दूँगा, तो इससे मुझे सिर्फ वो वाले सिल्वा नज़र आएंगे जिनके साथ ये स्पेस ज़्यादा है। ये लें जी, आगे जी, कंट्रोल V। होपफुली सिल्वा वाली इनकन्सिस्टेंसी तो रिमूव कर दी है मैंने, ओके। एंड अगेन ज़रा देखें इस चीज़ को। ये लें जी, सिल्वा साहब तो हो गए हैं रिमूव, और आपको सिल्वा सिर्फ एक ही नज़र आ रहे हैं जो कि यूनिक है, ठीक है। अब उसके बाद जो बाकी मसला आ रहा है वो इनमें आ रहा है, तो मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ, इसे और इसके अलावा, या दैट्स इट। ये लें जी। सो इसमें से किस चीज़ को स्टैंडर्ड बनाया जाए, किस चीज़ को अभी देख लेते हैं। एक स्पेस यहाँ पर है, यहाँ पे कोई स्पेस है नहीं है जी। सो दैट इज़ द रेगुलर पाब्लो नेम। बाकी सब में फॉर्मेटिंग में इशू है, जैसे कि ये थोड़ा सा, ये देखें जी ज़रा, इसमें स्पेस स्टार्ट में है। आई एम गोना क्लिक दिस वन और ये हो जाएगा, ठीक है जी। सो व्हाट आई एम गोना डू हेयर जी, मैं इस चीज़ को कॉपी करता हूँ, ये जो मेरा स्टैंडर्ड नेम है, और मैं दोबारा इस चीज़ को क्लिक करता हूँ। तो जो स्टैंडर्ड नेम है उसे अनक्लिक कर दें, तो बाकी तमाम वैल्यूज़ आपके पास शो हो जाएंगी, ठीक है जी। ये सारी को ऐसे ही रहने दें,
सारी कोई ऐसे रहने दें, झगड़ा ही ख़त्म करें। कंट्रोल वी, ये लें जी, सारी वैल्यूज़ एक जैसी कर दी हैं। आप इस झंझट में पड़े ना कि कौन से प्रेस को अनसेलेक्ट करना है, कौन से प्रेस को सिलेक्ट करना है। ओके, नेक्स्ट वी हैव दिस रेमी। ओके, अब इसमें से ये स्टैंडर्ड है जी, क्योंकि इसके अंदर एक्स्ट्रा स्पेसेस नहीं है। ठीक है जी, इसको कॉपी करें, इस सारे को कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से सिलेक्ट करें, ये लें एंड कंट्रोल वी, वो जो आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेट नेम है वो पेस्ट कर दिया मैंने। ओके, नाउ दीज टू आर इनकन्सिस्टेंसीज, यहाँ पे स्पेस ज़्यादा है तो इन दोनों को सिलेक्ट कर लें जी। चलें जी, कर लिया। इसको कॉपी करें। अब मुझे नहीं पता डेटा में कहाँ कहाँ पर आ रही हैं, तो मैं सारे को सिलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो तक डेटा वहाँ तक सिलेक्ट कर लेगा, कंट्रोल वी, ये लें जी, इनकन्सिस्टेंसीज रिमूव हो चुकी हैं। अब मैं सिलेक्ट ऑल कर लेता हूँ और सारी की सारी मुझे ये यूनिक नेम्स नज़र आ रहे हैं। अब कोई नेम रिपीटिंग नज़र नहीं आ रहा, ये लें जी। लेकिन अब आते हैं जी हम अपने इसकी तरफ, मैनेजर वाली साइड पे। तो यहाँ पे अभी भी प्रॉब्लम है, ऐसी है, वो अभी तक क्या नाम है अपडेट ही नहीं हुआ। तो मैं क्या करूँगा, इस पिवट टेबल को सिलेक्ट करूँगा और सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे जाऊँगा जी रिफ़्रेश पे, रिफ़्रेश ऑल, ये लें जी। तो डेटा की वो जो इनकन्सिस्टेंसी थी ना, कि जिसमें नेम तो सेम था लेकिन नेम में इशू ये आ रहा था, ऐसे लिखा हुआ है। तो एक्सेल इस नेम को और इस नेम को, ये जो नेम है सिल्वा का, इन दोनों को डिफरेंट लेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको स्पेस थोड़ी सी ज़्यादा मिल रही है, ये देखें। और यहाँ नीचे वाले सेल में जब आप सिल्वा को सिलेक्ट करते हैं तो ये सिंगल स्पेस मिल रही है। तो एक्सेल इन दोनों चीज़ों को डिफरेंट डील करेगा, सो कीप इट इन माइंड दैट। ओके, अब इसमें भी चार्ट इंसर्ट कर देते हैं जी हम, पिवट टेबल एनालाइज, पिवट चार्ट, ये लें जी, आपकी मर्ज़ी है बार चार्ट इंसर्ट कर दें, करना है तो। सो दिस इज़ द सम ऑफ द रेवेन्यू बाय द मैनेजर नेम। सो आई एम गोना रीफॉर्मेट दिस, बल्कि सिंपल मैनेजर ही लिखा रहने देते हैं। और ये सिटी है जी। सो इसको आपने ना डबल क्लिक नहीं करना है, ऐसे कर दें। वैसे अब तो हो रहा है, पहले नहीं होता था, या मे भी मैं भूल गया हूँ। सो ये सिटी नेम है जी, ये लें जी, यहाँ पे सिटी से रीनेम कर दिया, सम ऑफ द रेवेन्यू एंड सम ऑफ द रेवेन्यू, बट दिस इज़ बाय द सिटी एंड दिस इज़ बाय द मैनेजर। ठीक है जी, आप ये सम चूँकि मैथमेटिकल वर्ड है, आपने थोड़ा सा इंटरप्रेटिंग होना है, ठीक है, डेटा को लेकर। टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू, और ये जी पेस्ट ही नहीं कर रहा, ये पिवट टेबल में आपको प्रॉब्लम हमेशा आएगा। सो आपको इसे एडिट करना पड़ेगा। आप इसे डबल क्लिक करेंगे, वैल्यू फील्ड सेटिंग ओपन हो जाएंगी, डबल क्लिक करें, ये ओपन हो जाएगा। अब सेल के अंदर फिर कैसे जाएंगे, F2 प्रेस करके सेल को सिलेक्ट करें, F2 प्रेस करें, तो सेल के अंदर आपका कर्सर सिलेक्शन चली जाएगी। हाइड ऑल फील्ड बटन्स, रिमूव द ग्रिड लाइन्स, रिमूव द लेजेंड। चलें जी, ठीक हो गया जी, ये लें जी, ये भी हमने कर दिया है। और चार्ट टाइटल पे भी रिमूव भी कर दें, अभी ज़रूरत नहीं है, ये लें जी। हाँ, अगर आप ट्रेंड लाइन को देखें ना, तो एक ट्रेंड लाइन तो आप इस तरह रख ही सकते हैं, जो कि हमें ये बताएगी जी कि पेरिस से बर्लिन और लंदन की तरफ जाते हुए ये जो टोटल रेवेन्यू है ये इंक्रीज़ हो रहा है, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे जाती है जी, लिस्बन। ओके, लिस्बॉन या लिस्बन, आई डोंट इवन नो। देन वी हैव दिस, इसमें भी आप ट्रेंड लाइन ऐड कर सकते हैं, ये लें जी, ठीक है जी। और आप इसे दूसरी तरह भी ऑर्डर कर सकते हैं, सॉर्ट बाय स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, ये लें जी, इस तरह भी आप इसे अरेंज कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट, ये तो जो ग्राफिकल और मैनेजर परफॉर्मेंस हो गई, मैनेजर की परफॉर्मेंस ये है और इनकी बाईजान ये है सिटी की, कि बाई सिटी एंड ऑब्वियसली लिस्बन टॉप पे है। ऐड स्लाइसर्स, फिल्टर बाय डेट एंड प्रोडक्ट, इस काम को भी कर लेते हैं जी, कि स्लाइसर ऐड करने हैं। स्लाइसर बेसिकली फ़िल्टर का काम करते हैं, तो लेकिन स्लाइसर ऐड किस चीज़ का करना है, डेट का। चलें जी, पहले डेट का ऐड कर लेते हैं हम। इसको क्लिक करते हैं और इसका स्लाइसर मैंने ऐड करना है जी। तो यहाँ पे तो हाइड फील्ड लिस्ट, यहाँ पे तो ऑप्शन नहीं आ रही स्लाइसर की। सो इसका मतलब मुझे पिवट टेबल एनालाइज में जाना पड़ेगा, इंसर्ट स्लाइसर। स्लाइसर किसका ऐड करना है जी, सबसे पहले हम ऐड कर लेते हैं बाय डेट, तो डेट का स्लाइसर ऐड करते हैं जी, ये लें जी, हो गया ऐड। और डेट सर आ रही है इस तरह, जी हाँ, ठीक है जी। अच्छा जी, आर देयर मैनी अदर ऑप्शंस, नो दे आर नॉट, लेट्स डू दिस वे। हाँ, ये मैं गलत फॉर्मेटिंग नहीं कर रहा, ये लें, ज़्यादा हो गया थोड़ा सा। चलें अभी देख लेते हैं, इस चीज़ को भी एडजस्ट कर लेते हैं। अब ठीक है, अब ठीक है, अब थोड़ा सा और, अगेन थोड़ा सा और,
दिस एंड, चलें भाईजान कुछ तो फ़ायदा हुआ। ये लें जी, ये डेट का स्लाइसर ऐड हो चुका है। सो मैंने तो इस तरह ऐड कर दिया डेट का स्लाइसर, आगे आपकी मर्ज़ी आपने कैसे करना है। अभी तो सिर्फ मैंने स्लाइसर ऐड करके दिखाया, तो आप डिफरेंट फॉर्मेटिंग स्टाइल्स में स्लाइसर को ऐड कर सकते हैं। नो, सो इट्स अप टू यू। ओके, सो बाय द प्रोडक्ट भी स्लाइसर ऐड करें। एक और स्लाइसर ऐड कर देते हैं जी, बाय द प्रोडक्ट, एंड हेयर इज़ द प्रोडक्ट। ओके, सो प्रोडक्ट की जितनी कैटेगरीज हैं वो आ जाएंगी। ये लें जी, इसको भी लेंथी करना है, इसको भी लेंथी कर लेते हैं जी। स्लाइसर पे आएँ, कॉलम्स पे आएँ, 4 लिख दें। ये लें जी, उसके बाद इसको, इसकी विड्थ को कम कर दें और इस विड्थ को बढ़ा दें और उस लेंथ को कम कर दें बेसिकली। ये लें जी, कितनी कैटेगरीज हैं जी? 5 कैटेगरीज हैं। आई डोंट थिंक सो लेंथी करने से हो सकता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मैंने कॉलम्स जो किए हुए हैं ना वो हो गया। अब आप देख सकते, तब आप इसे छोटा भी कर सकते हैं। यही इसकी फॉर्मेटिंग में मसला था इसका मतलब। चलें इस चीज़ को भी ठीक करते हैं हम अभी। कंट्रोल जी, इसकी फॉर्मेटिंग का क्या करना है? मैंने 20 कॉलम्स दिए थे जी, थोड़े से ज़्यादा दे सकता हूँ। लेट्स ट्राई इट आउट विद 25। इट्स नॉट गोना वर्क, लेट्स ट्राई इट आउट विद 15। या दैट्स मोर रीजनेबल। सो दिस इज़ द प्रोडक्ट स्लाइसर एंड दिस इज़ द डेट स्लाइसर। अब अगर मैं सिर्फ इसे सिलेक्ट करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये लें जी, तो इस डेट को सिर्फ इनमें क्या नाम है रेवेन्यू है, बाकी शायद रेस्टोरेंट नहीं एग्जिस्ट कर रहे या उन डेट्स का रेवेन्यू डेटा में है ही नहीं। इसका 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 तो देख सकते हैं चार्ट भी आपका साथ साथ चेंज हो रहा है। बट ये वाला चार्ट क्यों नहीं चेंज हो रहा जी? दैट्स द प्रॉब्लम। इसको भी चेंज होना चाहिए। आई एम गोना रिमूव दिस ऑप्शन। ओके, मैं सिंगल कॉलम पे जाने लगा हूँ। ये जो स्लाइसर है ये ज़्यादा ही बड़ा है भाईजान। ठीक है जी, ये ना जी फ़िल्टर रिमूव कर दिए और इसका भी हम 1 कर देते हैं जी, और इस चीज़ को यहाँ पे ले आते हैं और इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं। नो, प्रॉब्लम ये है कि जब मैं ये सिलेक्ट करता हूँ तो ये वाला चार्ट चेंज होता है। आई मीन सिर्फ ये वाला चेंज हो रहा है, राइट? यानी ये दो जो स्लाइसर है ना, ये सिर्फ इस पिवट टेबल से कनेक्टेड है। ओके, ये दोनों स्लाइसर इस पिवट टेबल से कनेक्टेड हैं ही नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? ये स्लाइसर है, स्लाइसर में जाएं, बल्कि नहीं, यहाँ पे इज़ देयर एनी ऑप्शन? अगर मैं इस पिवट टेबल को सिलेक्ट करूँ, पिवट टेबल एनालाइज, मूव पिवट टेबल, फ़िल्टर कनेक्शंस, यहाँ पे भी फ़िल्टर कनेक्शंस हैं जी। सो ये फ़िल्टर कनेक्शन बताए जा रहे हैं कि फ़िल्टर कौन कौन सा है। प्रोडक्ट का है, ठीक है, और कैप्शन प्रोडक्ट है, और एक का डेट है, ठीक है। और ये तो फ़िल्टर कनेक्टेड है, किससे कनेक्टेड है जी? पिवट टेबल 7 से, और ये मेरा पिवट टेबल 7 है। अब जब मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ, ये पिवट टेबल 8 है, इसके फ़िल्टर कनेक्शन है ही नहीं इन दोनों के साथ, तो डेट का भी कनेक्ट करना पड़ेगा और प्रोडक्ट का भी करना पड़ेगा। ये लें जी, अब आप करें, दोनों चार्ट चेंज होंगे। ये लें, ये लें, ये लें, ये लें, ठीक है जी। और ये सारे के सारे सिलेक्ट किए हैं आपने फ़िल्टर रिमूव करके। एंड लेट से अब मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो ये सिर्फ सिंगल कैटेगरी का दिखा रहा है। लेकिन अगर मैंने सिंगल नहीं, 2 कैटेगरीज़ का सिर्फ देखना है, मल्टीपल सिलेक्शन ऑन करें और ये लें जी, ठीक है जी। सो दैट्स हाउ यू कैन डू दिस। स्लाइसर ऐड तो कर लिए, लेकिन यूज़ भी तो करने आने चाहिए ना। सो ये शीट तो हो चुकी है कंप्लीट। देन वी हैव द टाइम सीरीज़ एनालिसिस। इसकी शीट नहीं बनाते हैं जी अब हम, ठीक हो गया। इधर आते हैं शीट पे, टाइम सीरीज़ एनालिसिस। ओके, अब इसमें क्या करना है? डेट वाइज रेवेन्यू जी। कौन सा रेवेन्यू जी? डेट वाइज। आए जी, पहले डेटा को देखते हैं। ये है जी आपका डेटा 7/11/2022 7/11। आप एक चीज़ ऑब्ज़र्व करें, आपकी डेट्स रिपीट हो रही हैं, ऐसी है कि नहीं है? सेम डेट है, ठीक है। तो इसका मतलब जब आप टाइम सीरीज़ चार्ट ऑब्वियसली ड्रॉ करेंगे, तो लाइन चार्ट ड्रॉ करेंगे ना आप, तो उसमें जो आप रेवेन्यू लेंगे, तो इस डेट का रेवेन्यू प्राइस के लिए और है, इस डेट का और है, इस डेट का और है, ठीक है जी। तो आपको तीनों डेट्स का रेवेन्यू ऐड करना पड़ेगा। यू अंडरस्टैंड दिस? नहीं, पिवट चार्ट इंसर्ट करें, समझ आ जाएगी। ये लें जी, अगर आप गौर करें, आपके पास टोटल नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है जी? 254। ओके, ये याद रखनी है, टोटल नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है जी? 254 है, ठीक है। सो जब आप इंसर्ट करते हैं पिवट टेबल, सो यू नीड टू चूज़ द एग्जिस्टिंग शीट, और टाइम सीरीज़ एनालिसिस है जी, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं।
अब अगर आप यहाँ पे डेट को ड्रैग करें रोज़ में, अब देखते हैं जी, अब आपके पास 53 रोज़ हैं। इसका मतलब जो यूनिक डेट्स हैं वो 53 हैं। इसका मतलब डेट्स रिपीट हो रही हैं। ठीक है जी, डेट्स क्या हो रही हैं जी, रिपीट हो रही हैं। तो जब डेट्स रिपीट हो रही हैं तो इसका मतलब एक डेट के लिए आपको मल्टीपल रेवेन्यूज़ की वैल्यूज़ मिल सकती हैं। ठीक है, तो सिंगल डेट के लिए जितने रेवेन्यू एग्जिस्ट कर रहे होंगे डेटा में, सिंगल डेट के लिए, किसके लिए, सिंगल डेट के लिए 7/11/2022 ये सिंगल डेट है। सो जितने रेवेन्यू एग्जिस्ट करेंगे, ये देखें, आपको ऐड करना पड़ेगा इनको। क्या करना पड़ेगा जी, ऐड करना पड़ेगा। और मैं काम ये करता हूँ आसानी का, मैं इसे सॉर्ट बाय कलर, टेक्स्ट फिल्टर, नो, ये डेट ही आ रही है एंड ऑब्वियसली इसे डेट ही आना चाहिए। इसका फॉर्मेट अगर मैं चेंज कर दूँ कस्टम में जाके, डेट एंड देन वी हैव द कस्टम। सो मुझे मंथ स्टार्ट में नहीं चाहिए, डी डे चाहिए मुझे, फिर उसके बाद मुझे मंथ चाहिए, फिर ईयर चाहिए। ये लें जी, ये मैंने अपने उस फॉर्मेट में कर लिया जी जिसमें मुझे इजी लगता है, 11। सो अब इसे मैं किस तरह सॉर्ट कर सकता हूँ, Z to A 30/11, और अगर A to Z करूँ मैं 12/1। ठीक है जी, 2022। इससे बेहतर ये है कि सॉर्ट के ऑप्शन इस तरह, इस पर क्लिक करें, सॉर्ट के ऑप्शन पे जाएं, ओल्डेस्ट का मतलब स्टार्ट से। ये लें जी, पूरा का पूरा डेटा अरेंज हो चुका है। और अब आते हैं जी टाइम सीरीज़ एनालिसिस पे। ठीक है जी, इस कॉलम को मैं रीनेम कर देता हूँ किसमें जी, डेट में, और डेट रिपीट हो रही है। ठीक है जी, आप डेट की वैल्यू को सिलेक्ट करके काउंट करें तो 53 आता है, जबकि डेटा में जो डेट्स दी गई हैं यहाँ पे, अगर उनको मैं काउंट करूँ तो 254। इसका मतलब डेट रिपीट हो रही हैं, दैट्स इट। चलें जी, तो इसका मतलब आपके पास सम ऑफ रेवेन्यू होगा फॉर दैट पर्टिकुलर डेट। पिवट टेबल को सिलेक्ट करते हैं, पिवट टेबल एनालाइज, फील्ड लिस्ट, एंड देन वी हैव द रेवेन्यू कॉलम हेयर। सो उसने सम ऑफ रेवेन्यू हमें दे दिया है। क्या दे दिया है जी, सम ऑफ रेवेन्यू। ये लास्ट ऑप्शन हम डिलीट कर देते हैं, हमें टोटल रेवेन्यू नहीं चाहिए जी। पिवट टेबल ऑप्शंस एंड शो ग्रैंड टोटल, नो, अनक्लिक बोथ ऑफ देम। पिवट चार्ट, लेट्स से पिवट चार्ट। सो लाइन चार्ट पे आते हैं जी, ये वाला लाइन चार्ट। ठीक है जी, लाइन विद मार्कर्स एंड दिस इज़ द लाइन, सिंपल लाइन। ओके, दिस इज़ ऑल्सो अ लाइन, नो इशू इन दैट। ये थोड़ी सी डिफरेंट ही लाइन है, ये परसेंटेज में आ रही है। ठीक है, ये लाइन विद मार्कर्स है, मुझे ये अच्छी लगती है जी। एंड अगेन हाइड आउट फील्ड बटन्स एंड आल्सो लेजेंड भी रिमूव कर दें जी। ठीक हो गया जी, और ये लें, चार्ट टाइटल भी रिमूव कर दें अभी आप। तो ये आपकी सेल्स, यू नो, सम ऑफ रेवेन्यू, सेल्स ओवर टाइम है। ठीक है जी, एंड ऑब्वियसली यूनिक डेट्स ली जा रही हैं। ठीक है, 11/12, दिस। इसका भी फॉर्मेट अगर मैं चेंज करना चाहूँ, इसे मैं लेके जाता हूँ जी मोर नंबर फॉर्मेट्स, यहाँ पे कस्टम में जाते हैं। पहले डेट क्लिक कर लेते हैं, अब कस्टम में जाता हूँ, डे, मंथ, ईयर। ये लें जी, अब इसे मैं सॉर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, या करके देख लेते हैं, एक्सपेरिमेंटेशन ही है। आई थिंक देर इज़ सम प्रॉब्लम इन इट, या आई थिंक सो। अगर मैं डेट वाली ऑप्शन क्लिक करता हूँ, शॉर्ट डेट वाली, पिवट टेबल फॉर्मेटिंग मुश्किल कर देता है, एज़ फार एज आई थिंक सो। ठीक है, चलें जिसे सॉर्ट करते हैं, सिलेक्ट दिस, सॉर्ट की ऑप्शन ही नहीं आ रही जी, आई डोंट नो वाई। सॉर्ट हुआ है वैसे ऑलरेडी ये। ठीक है, सॉर्ट Z to A, अब 12/12 हो गया, और A to Z 13/11। सो ऐसे ही ठीक है, फ्रॉम द इनिशियल स्टेज टू द फाइनल स्टेज। ओके, ये आपका टाइम सीरीज चार्ट है जो कि आपको सेल दिखा रहा है, सम ऑफ रेवेन्यू दिखा रहा है ओवर द टाइम। द परफॉर्मेंस इज़ क्वाइट कंसिस्टेंट, बाहर बैठा हुआ है, इसका जो बिहेवियर है बहुत ही एबनॉर्मल बिहेवियर है, नॉर्मलस। ये भी बड़ा लीनियर ट्रेंड जा रहा है। यहाँ पे थोड़ी सी फ्लक्चुएशंस आई हैं, और फिर उसके बाद पीक्स कम आई हैं। जो पीक्स मुझे यहाँ पे फॉलो करने को मिल रही हैं वो मुझे यहाँ पे नहीं मिल रही। सो आप इजीली ट्रेंड को, सेल्स पैटर्न को एनालाइज कर सकते हैं ओवर द टाइम यूजिंग द लाइन चार्ट। ठीक है, तो टाइम सीरीज जो डेटा होता है आप उसे चार्ट के थ्रू ही, क्या नाम है, लाइन चार्ट के थ्रू ही ड्रॉ करते हैं। ठीक है, उसके लिए कैटेगोरिकल बार चार्ट, कॉलम चार्ट, ये चीज़ें नहीं यूज़ की जाती। अच्छा जी, लाइन चार्ट हो गया। एवरेज रेवेन्यू नवंबर एंड दिसंबर। ठीक है जी, KPI कार्ड, फिल्टर टाइमलाइन टू नवंबर एंड दिसंबर। एवरेज रेवेन्यू जी आपने फाइंड करना है, लेकिन आपने क्या करना है जी, फ़िल्टर टाइमलाइन करनी है। ठहरें जी, ज़रा इस पर चलते हैं। हमने KPI यहाँ पे सारे फाइंड आउट किए हुए थे। ठीक हो गया, सो ये सारे एक ही पिवट टेबल थे जिसको मैंने
एडिट किया था पिवट टेबल 1। अगर इसके अंदर मैं एक टाइमलाइन ऐड कर देता हूँ, इट डज़ नॉट हैव अ फील्ड फॉर्मेटेड एज डेट। एक्सेल मेरे इस कॉलम को डेट के तौर पे ले ही नहीं रहा, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जी। सो आई थिंक देर इज़ सम इनकन्सिस्टेंसी इन द डेटा, दैट इज़ वाई मुझे वहाँ फॉर्मेटिंग में इशू हो रहा था। अब ले रहा है डेट, चलें अब देख लेते हैं। सो मैं क्या करता हूँ, वापस उस शीट पे जाता हूँ KPIs की। चलें जी, चला गया KPIs पे। मैं यहाँ पे जाकर दोबारा मैं टाइमलाइन इंसर्ट करता हूँ। वी कांट क्रिएट अ टाइमलाइन फॉर दिस रिपोर्ट बिकॉज इट डजंट हैव अ फील्ड फॉर्मेटेड एज डेट। वेट अ मिनट प्लीज़, आ तो रही है डेट और शो भी वो करवा रहा है डेटा में। चलें रिफ़्रेश करके देखते हैं जी। रिफ़्रेश ऑल। रिफ़्रेश क्यों किया जी मैंने, क्योंकि मैंने डेट फॉर्मेट किया है उसे। नाउ लेट्स अगेन इंसर्ट टाइमलाइन। इट्स नॉट हैपनिंग, इट डजंट हैव अ फील्ड फॉर्मेटेड एज डेट। सो आई नीड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम समहाउ। डेट ही तो है। मोर नंबर फॉर्मेट्स, कस्टम। ओह, here comes the problem. Let's see if it solves the problem. Again I'm going to the KPI sheet. यहाँ पे जाके जी मैं क्या करता हूँ जी, रिफ़्रेश कर लेता हूँ। मैं पिवट टेबल सेलेक्ट करता हूँ, रिफ़्रेश ऑल। अब दोबारा क्या ना मैं टाइमलाइन इंसर्ट करता हूँ। वी कांट क्रिएट अ टाइमलाइन फॉर दिस रिपोर्ट बिकॉज इट डजंट हैव अ फील्ड फॉर्मेटेड एज डेट। सो इट डजंट हैव अ फील्ड बट इट हैज़ अ फील्ड ना। फिर एक ही हल बचता है इसके अलावा कि हम फ़िल्टर यूज़ कर लें इस डेट को। अगर ऐसे नहीं, अगर हमारे पास लेट से हो रहा, तो हम यहाँ से ये वाला काम कर सकते हैं। अगर ये भी पसंद नहीं है तो फिर इस तरह देख लें चीज़ों को। ठीक है जी। और अगर ये भी पसंद नहीं है तो स्लाइसर ऐड कर लें यहाँ पे डेट का। ये लें जी, स्लाइसर ऐड कर लिया। इस तरह ऐड करके देख लें आप। ठीक है, दैट्स इट। और वी कुड से दैट इट्स अ गुड थिंग। तो आप ये लें, सारी वैल्यूज़ चेंज हो गई हैं, ये देखें सारी चेंज हो रही हैं दिस। और अगर मल्टीपल सिलेक्शन करनी है तो ये लें जी, तमाम वैल्यूज़ चेंज होती जाएंगी। तो ये वाला काम मैंने क्यों किया, जो मैं तब से खप रहा था जी इस चीज़ में। डेट तो वो रिकग्नाइज़ नहीं कर रहा, उस प्रॉब्लम को तो देखना पड़ेगा। ठीक है, तो फ़िलहाल काम तो चलाना था ना। तो स्लाइसर ऐड कर दिया, टाइमलाइन नहीं ऐड हुई। तो टाइमलाइन क्या होती है, एक सिंपल हॉरिजॉन्टल बार होती है जिसके ऊपर आप इस तरह के कर्सर को, ये जो ब्लू कलर का कर्सर, इसे मूव करके टाइम एडजस्ट कर सकते हैं कि किस टाइम में मुझे कौन सा वेरिएबल चाहिए, यानी उसकी क्या वैल्यू चाहिए। सो ये तो मैंने कर दिया है। KPI कार्ड फिल्टर टाइमलाइन टू नवंबर एंड दिसंबर। चूँकि वो डेट ही नहीं रिकग्नाइज़ कर रहा, जब वो डेट ही नहीं रिकग्नाइज़ कर रहा तो वो नवंबर दिसंबर में कैसे जाएगा। ठीक हो गया। हाँ, अलबत्ता एक और इसका हल है जो कि डेटा फॉर्मेटिंग से रिलेटेड है, उस पर अभी नहीं जाऊँगा। वैसे उसमें क्या किया जा सकता है, उसमें बड़ा सिंपल काम किया जा सकता है कि ये जो आपके पास डेट दी गई है ना, इस डेट को कन्वर्ट करें टेक्स्ट में। कौन से टेक्स्ट में कन्वर्ट करना आपने, बेसिकली आपने इसे कन्वर्ट कर देना है इनटू मंथ्स। लेकिन उस सोल्यूशन की तरफ अभी नहीं जा रहे हम, अभी हम स्टिक टू द प्लान ही रहते हैं। ये लें जी, रेवेन्यू ट्रेंड, ऐड अ ट्रेंड लाइन टू द डेट वाइज रेवेन्यू चार्ट, शोज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ठीक है जी। तो ये है जी आपका टाइम सीरीज एनालिसिस में चार्ट है जी। आप इसमें ट्रेंड लाइन ऐड कर दें जी। ये लें जी, ये हमारी ट्रेंड लाइन है। इट इज़ सीमिंगली कॉन्स्टेंट, या इट लुक्स अ वेरी लीनियर एंड कॉन्स्टेंट ट्रेंड, टोटली लीनियर। नेक्स्ट क्या है जी, हमारे पास रेवेन्यू ट्रेंड भी हो गया। स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ रेवेन्यू एंड क्वांटिटी। सो डू वी हैव द स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ रेवेन्यू एंड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ क्वांटिटी। अब इसका क्या किया जाए जी, बड़ा सिंपल हल है इसका। मैं सारे KPIs यहीं पे इंसर्ट कर देता हूँ। ठीक है जी। स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ रेवेन्यू फाइंड करना है। फिर उसके बाद क्वांटिटी का भी फाइंड। ठीक है, तो कोई बात नहीं है। यहाँ पे गए, पिवट टेबल एनालाइज, फील्ड लिस्ट ओपन की, क्वांटिटी है जी, क्वांटिटी को ले आए जी यहाँ पे। ये उसने सम दे दिया है, लेकिन वो आपसे क्या मांग रहा है, स्टैंडर्ड एविएशन। चलें जी, स्टैंडर्ड एविएशन में कन्वर्ट करते हैं इसे। समराइज वैल्यू एज, मोर ऑप्शंस में जाएं, यहाँ पर जाकर स्टैंडर्ड एविएशन क्लिक कर दें। फिर उसके बाद आगे आपने क्या करना है जी, वेरिएंस ऑफ स्टैंडर्ड एविएशन तो ऑलरेडी है, क्वांटिटी का वेरिएंस भी निकालना है। इसी को कॉपी करें और यहाँ पे पेस्ट कर दें चुप करके, सेम पिवट टेबल की वैल्यू को। अब इसे आप, वाह, इसका मतलब ये पिवट टेबल उसने पेस्ट नहीं किया, ये उसने जस्ट वैल्यूज़ पेस्ट कर दी हैं विद द करेक्ट फॉर्मेटिंग। सो मुझे इसी वैल्यू को दोबारा क्या नाम इंसर्ट करना पड़ेगा यहाँ पे। अब इसको मैं समराइज वैल्यूज़ बाय वेरिएंस, ये लें जी, और 2 डेसिमल प्लेसेस पे कर देता हूँ। और फ़िल्टर, ये लें जी, ये फ़िल्टर अनसेलेक्ट करूँगा ना तो तमाम डेट्स के लिए ये वैल्यूज़ आ रही हैं। ये भी हो गया जी। और इसके बाद फार्मूला मैंने यूज़ नहीं किया, मैंने पिवट चार्ट के थ्रू ही कैलकुलेट कर लिए।
हाँ जी, समराइज बाय प्रोडक्ट, फीचर्स टू यूज़, ये सारे हमने यूज़ कर लिए हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी यूज़ की, स्लाइसर्स भी यूज़ किए। बस ये वाला फॉर्मेट हमने यूज़ नहीं किया, जिसे हम क्या बोलते हैं जी, टाइम लाइन्स। ठीक है, ट्रेंड लाइन्स भी हमने देख ली हैं जी। सो दैट्स इट। अब उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या बताऊँगा जी आपको, डैशबोर्ड लेआउट। अब आपने सारा जो कैलकुलेशन थी वो कर तो दी हैं जी आपने, ठीक है जी। अब आपने उन्हें प्रेजेंट कैसे करना है, इस सारे को एक डैशबोर्ड की शक्ल में आपने रखना है। ये जो सारा आपने बना दिया ना, ये पेमेंट एनालिसिस, ठीक है, जिसके लिए मैंने इतने ज़्यादा चार्ट्स आपको बना के दिखाए हैं ताकि आपको पता चल सके कौन कौन से चार्ट्स बन सकते हैं। कोई एक डालना, सारे नहीं डाल देने, खिचड़ी नहीं मचानी, ठीक है। अगर इस चार्ट को आप यूज़ कर रहे हैं इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए, तो दूसरा चार्ट आपको यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। और चार्ट वो वाला यूज़ करना जो मीनिंगफुल होगा, ये नहीं है कि बस पिक्चर पे पिक्चर, चार्ट पे चार्ट इंसर्ट करते जाए हम। देन वी हैव द प्रोडक्ट एनालिसिस, ओके। Then we have the geographical and manager performance, right, with the slicers. Then we have the time series chart. That is the simple chart. ठीक हो गया। और इसमें हमें एक इशू आया है कि ये जो कॉलम है ये एज अ डेट रिकग्नाइज नहीं हो रहा। फिर मैं इसका दोबारा मोर नंबर फॉर्मेट्स में जाके कस्टम में जाता हूँ, तो चेक कर लेता हूँ मैं। मंथ DDMM, लेट्स सी DDMMYY, और यही काम दोबारा यहाँ पे देख लेते हैं ताकि एक दफ़ा टाइमलाइन वाला काम हो जाए। नहीं तो मुझे इस फॉर्मेट को देखना पड़ेगा कि इसमें क्या मसला आ रहा है। कस्टम में चलता हूँ, मोर नंबर फॉर्मेट्स, कस्टम, और यहाँ पे MM लिख देता हूँ। इससे ये भी पता चल जाएगा कि सिंगल M भी रिकग्नाइजेबल होता है या नहीं। MM मीन मंथ्स, DD मीन डेट्स, लेकिन नहीं, मुझे पहले डे चाहिए, फिर उसके बाद मुझे मंथ चाहिए, और फिर ईयर्स चाहिए मुझे। ये लें जी, लेट्स सी, टाइम सीरीज एनालिसिस पे चलते हैं जी। अच्छा जी, पिवट टेबल एनालाइज रिफ़्रेश कर लेते हैं, रिफ़्रेश ऑल, और इसका भी फॉर्मेट एक दफ़ा देख लेते हैं ताकि गलती से बचा जा सके। इसका फॉर्मेट वही है जो उसका है। अब अगर मैं नहीं कर रहा जी वो, इट डज़ नॉट हैव अ फील्ड फॉर्मेटेड एज डेट, सो आई जस्ट डोंट नो हाउ टू फिगर आउट दैट एरर। ओके, आई विल फिगर आउट। सो नेक्स्ट वीडियो में हमारा टास्क क्या होगा जी, हेडर, पेमेंट मेथड एनालिसिस, प्रोडक्ट परफॉर्मेंस, सिटी, दिस। सो जी, ये 6 एलिमेंट्स हैं जिनका हमने डैशबोर्ड बनाना है, ठीक हो गया, यूजिंग दिस ऑल चार्ट्स एंड दिस एनालिसिस। ओके, सो दैट्स फ्रॉम मी फॉर द डे, ठीक है जी। सो मैंने आपको डेटा एक्सप्लेन किया, फिर ये सारे चार्ट्स वगैरह बना के दिखा दिए। इन द नेक्स्ट वीडियो मैं क्या करूँगा, एक पूरा प्रॉपर प्रेजेंटेबल डैशबोर्ड बना के दिखाऊँगा, ठीक हो गया। सो if you like the video, right, share it, subscribe my channel, okay. If you like the content, do share it, it's a good thing to share. So that's all, and Allah Hafiz.